Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today we will start the new chapter, that is descriptive statistics. Do you know about the descriptive statistics? You already studied in economics class. So first of all, we have statistics. Statistics, that means the data based on some or other informations can be verified by using appropriate mathematical tools. That means we can say that the statistics of collecting, studying and analyzing numerical data is known as statistics. Statistics is concerned with collecting data, ऑर्गेनाइजिंग डाटा मैं सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं, देन वी हैव टू एनालाइज द डाटा एंड देन वी हैव टू ड्रॉ द conclusion or make inferences from the data. There are two types of data. There are two types of statistics. The first is descriptive and second will be inferential. Descriptive statistics we study in 11th class and inferential statistics we will study in the 12th class. And descriptive statistics that deals with the following: collecting, summarizing, interpreting the data. ठीक है, that can be easily understood. And for inferential statistics that deals with the methods for obtaining and analyzing data to make inferences by performing estimation and hypothesis test. And now the how this descriptive statistics can be originated. That is originated by the during the census taken by Babylonians and Egyptians in 4500 to 3000 BC. That means वो क्या करते थे, इस जो उनके लाइव स्टॉक्स है ईच पर्सन का या उनकी क्रॉप्स है, जो ईयरली क्रॉप्स है, उसका वो रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे. And now we have data. What is data? That means the facts, numeric or numericals collected for a specific purpose is called data. ठीक है, जब हम किसी चीज के बारे में बोलते हैं या इस डाटा से हम कुछ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं, दैट इज द डाटा. जैसे अब न्यूज़पेपर की हेडलाइंस अगर हम रीड करते हैं कि इंडिया टू बिकम ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025. ठीक है, तो यानी कि इंडिया की जो 2025 के अंदर जो इकोनॉमिक है वो $5 ट्रिलियन हो जाएगी. इंडियाज पॉपुलेशन इज सरप्रेस दैट ऑफ चाइना अराउंड 2024. दैट इज बेस्ड ऑन द डाटा collected by the persons. And now we have the types of data. In types of data we have different types. That is, first one is the based on sources. And the based of sources, first is the primary data, second will be the secondary data. In based on organization, यानी कि उसको हम अरेंज करते हैं, then that is raw data or organized data or classified data. And then we have based on values. values के ऊपर जो होता है हमारे पास discrete data and then continuous data. And based on variables यानी कि variables के ऊपर है, first is univariate data, second is bivariate data and third will be multivariate data. अब इन सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो फर्स्ट इज द डाटा बेस्ड ऑन सोर्सेस. प्राइमरी डाटा, आपको पता ही है, जो डाटा आप खुद कलेक्ट करते हो दैट इज द प्राइमरी डाटा. यानी कि जो डाटा आप खुद कलेक्ट कर रहे हो, यानी कि आप किसी भी सर्वे के अंदर कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज द प्राइमरी डाटा. ठीक है, और सेकेंडरी डाटा जो आप किसी और से डाटा लेते हो तो वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा होता है. अब जैसे अब मुझे आपकी हाइट कलेक्ट करनी है, ठीक है, तो हाइट की कलेक्शन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आपकी क्लास की, तो ये तो अगर मैं खुद कलेक्ट करूंगी, सबकी हाइट मेजर्स करके कलेक्ट करूंगी, दैट इज द प्राइमरी डाटा. और अगर मैं स्कूल की मेडिकल रिपोर्ट से ले लेती हूँ, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकेंडरी डाटा. एंड नाउ द डाटा बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, द फर्स्ट वन इज रॉ डाटा. जो भी हम फर्स्ट हैंड कलेक्टेड, जो भी हम फर्स्ट सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज द रॉ डाटा. एंड इट इज unorganized, unclassified
or it is very difficult to make meaningful observations on it. That is the raw data. Organized data, इसको हम organize करते हैं किसके फॉर्म में, उसको क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इंटरवल्स की फॉर्म में इसको क्लासिफाई भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको अरेंज कर देते हैं और उसमें से कुछ मीनिंगफुल कैलकुलेशन ले सकते हैं, दैट इज द ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डाटा। फॉर एग्जांपल, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट, दैट इज ए रॉ डाटा। ओके, यस, नाउ आपको पता है जो पिन कार्ड होते हैं, पिन कोड होते हैं, पोस्टल इंडेक्स कोड, that is the post office number code system used by postal service of India। ठीक है, अब ये 6 डिजिट लॉन्ग कोड होता है। अब ये पर्टिकुलर मीनिंग्स होते हैं इसके। ठीक है, क्योंकि ये जो पिन होता है इसके बेस पर, इस पिन कोड के बेस पर जो पोस्टमैन होते हैं वो इसको सॉर्ट आउट करते हैं और उनके प्लेसेस पर पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो अब ये जो नेम ऑफ, जैसे ये फर्स्ट नंबर है पिन कोड का, ये जो फर्स्ट नंबर होता है ये रिप्रेजेंट करता है रीजन को। यहाँ पे 1 नॉर्थ रीजन के लिए 1 है। ठीक है, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, इन सब के अलग अलग कोड है। ठीक है, उसके बाद सब रीजन के लिए 2 नंबर दिया मैं अपना। फिर ये जो 3 है, 3 डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो 1 2 है ना, 1 2 की जो कलेक्शन है, दैट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द स्टेट। और जो 3 दिया हुआ है, दैट इज फॉर द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और ये 0 2 9 है, दैट इज द नेम ऑफ द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, अपने जो फतेहाबाद का कोड है, दैट इज 125050। ठीक है, yes, now the data based on variables. The based on variables we have univariate data. Uni means one होता है, it means that contains only one variable. For example, the height of all students in your class and their analysis charts or average is the simplest form of the analysis, since the information deals only one particular quantity that changes। okay, that is the univariate data, जिसके अंदर हमारे पास one variable होता है, that is univariate। and bivariate data, that involves 2 different variables। this analysis to find out the connection between these 2 variables, that mainly causes and relationships। for example, जैसे डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व जो करेक्टली एक्सप्लेन करती है बाइवेरिएट डाटा, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए गुड हैज द इनवर्स रिलेशनशिप विद द प्राइसेस। ठीक है, बाकी जो फैक्टर्स होते हैं दैट इज कांस्टेंट लाइक इनकम। जैसे हमारे पास ये है डिमांड और क्वांटिटी का ग्राफ देखें तो प्राइस हमारे पास क्या है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे जैसे क्वांटिटीज की डिमांड बढ़ती जा रही है, प्राइसेस की वैल्यूज डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास डाटा है तो उसके बाद ही हम उसको स्टडी करते हैं। यस, नाउ वी हैव मल्टीवेरिएट डाटा। मल्टीवेरिएट डाटा का मतलब क्या है, जब जिसके अंदर हमारे पास 2 और मोर वेरिएबल्स हो। to analysis where analysis is done to understand the interaction between different fields of the data। for example, your grade in class 11th depends on the performance in various subject। आपकी ग्रेड किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं जो आपने ऑप्ट किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। और जो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो उसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, लेबर है, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर्स है, सेल्स एक्सेट्रा के ऊपर डिपेंड करती है। दैट इज द मल्टीवेरिएट डाटा। एस नाउ अगर हम कंपैरिजन करें तो यूनिवेरिएट डाटा है दैट इन्वॉल्व्स ए सिंगल वेरिएबल, बाइवेरिएट 2 वेरिएबल्स और मल्टीवेरिएट मोर देन 2 वेरिएबल्स। अब ये डज नॉट डील विद कॉजेज एंड रिलेशनशिप, और जो बाइवेरिएट होता है दैट डील्स विद causes and relationship। और जो मल्टीवेरिएट डाटा है दैट डील्स विद एक्सप्लेनेटरी पर्पस, उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं। अब मेजर पर्पस क्या होता है, टू एनालिसिस इज टू डिस्क्राइब। अब बाइवेरिएट का भी क्या है, एनालिसिस इज टू बी डिस्क्राइब्ड। अब ये जो है ना कि वेरियस वेज टू एनालाइज द मल्टीवेरिएट डाटा डिपेंडिंग ऑन द गोल्स, गोल क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है। और फ्रीक्वेंसी, इसमें जो हम क्या करते हैं यूनिवेरिएट में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड और डिस्पर्शन, रेंज, क्वार्टाइल वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करते हैं। ठीक है। और जो बाइवेरिएट डाटा होता है वो हमारे पास टू वेरिएबल्स का एनालिसिस है, उसमें हम कोरिलेशन फाइंड करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, कॉजेस, एक्सप्लेनेशंस एक्सेट्रा। Okay, and this is the difference between univariate, bivariate and multivariate. And now the data based on variables, that is data on the various scale, इसके characteristics क्या है, वेरियस स्केल्स पर हम कैसे मेजर करते हैं। तो वेरियस स्केल पर मेजर करने के लिए फोर कॉमन टाइप्स है। द फर्स्ट इज नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। Okay, we will discuss this nominal level of measurement. In normal level of nominal level of measurement, यानी कि अब इसके अंदर जो डाटा को हम डिफरेंशिएट करते हैं उनके नेम्स, उनकी कैटेगरी के बेस पर। अब जैसे आपका नेम आप मेल हो, फीमेल हो, जेंडर भी हम बता सकते हैं। कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, ठीक है, तो SC है, ST है, ये हम इसके बेस पर भी नेम के बेस पर जो है ना उसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। ऑर्डिनल लेवल मेजरमेंट, ऑर्डिनल लेवल मेजरमेंट के अंदर हम ये जो ऑर्डर्ड रैंक करते हैं, बट प्रिसाइज मेजरमेंट डिफरेंस डज नॉट एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को ले लिया है कि वो सुपीरियर है, एवरेज है या पुअर बैट्समैन है, इनको हम रैंक देते हैं, रैंक के बेस पर हम करते हैं। दैट इज द ऑर्डिनल लेवल मेजरमेंट। और बट जो प्रिसाइज मेजरमेंट होता है दैट कैन नॉट बी डन एज समटाइम्स दे मे परफॉर्म डिफरेंटली। ठीक है, कई बार वो अच्छा खेलते हैं, कई बार अच्छा नहीं खेलते। ठीक है। एंड ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट क्लासिफाइड इनटू कैटेगराइज it can be ranked, however the precise differences between the ranks do not exist, क्योंकि वो उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मूड अच्छा है तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अगर मूड अच्छा नहीं है तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। ठीक है। और ऑब्जर्वेशंस कैन बी प्लेस्ड इनटू कैटेगराइज that can be ranked, or interval between each value of the data in the scale is not always same. For example, a sample of teachers of your class, of your school, categorized according to their subject. They teach maths, English, geography, pol science, etc. That is the example of nominal level. Putting them देयर जेंडर, जेंडर के बेस पर उनका मटेरियल स्टेटस क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, रिलीजन क्या है, रिलीजन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ मेजरमेंट्स। द कैटेगराइज डू नॉट टू बी नॉमिनल्स। अब इसके ये जो हमारे पास होता है, ये जो डाटा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है। अगर मैरिड है तो अनमैरिड नहीं होगा, यानी कि अगर मैरिड है तो अनमैरिड नहीं है, ऑब्वियसली दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है। फिर हम इनके ऑर्डर को हम अप्लाई करते हैं। ईच ऑब्जर्वेशंस बिलोंग टू वन ऑफ द सेवरल डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। दे कैन बी लेबल्ड, उनको हम लेबल कर सकते हैं। एंड नाउ वी हैव द इंटरवल स्केल मेजरमेंट्स। इंटरवल स्केल मेजरमेंट्स, that means the interval scale measurements specify equal distance between each interval along with categories and putting into order. For example, 100 rupee to 200 rupee note, that is same interval as 700 to 800. ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, इंटरवल्स को मेजर कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस होता है। अब जैसे लोकेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ के अंदर हमारे पास एक इंटरवल्स कंसीडर करते हैं 1 2 3। ठीक है। स्केल आप मेजर करते हैं, दैट इज द, और डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव वैल्यूज इज द सेम, और इंटरवल कैन रिप्रेजेंट बिलो वैल्यूज एज वेल। Yes, now we have the ratio scale measurements. Ratio scale measurements, that observations have a value of 0 as well as along with having equal intervals.
That means ratio level of measurements has all the features of the interval measurements in addition to existence of meaningful true zero values. For example includes height, weight, area, length, time, duration, etc. Ratios are always meaningful as they depict how much or how many of something. For example, when we say about that a car takes double times than train to travel the same distance, and a person has twice the height of his son. यानी कि यहाँ पर हम रेशो की फाइंड कर रहे हैं, जो रेशो है वो हमारे पास क्या है, 2:1 है. It means this is the two ratios. Two ratios are considered to exist when same variable is measured on the two different members of the population. I hope you understand. और जैसे अब इसको दोबारा से हम डिस्कस कर रहे हैं, नॉमिनल में हम क्या करते हैं, नेम वेरिएबल्स मेजर करते हैं. ऑर्डिनल में के अंदर नेम प्लस ऑर्डर वेरिएबल होते हैं. इंटरवल्स के अंदर नेम, फिर इसको ऑर्डर में, एंड देन प्रोपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन द वेरिएबल्स. और रेशो में क्या होता है, नेम, ऑर्डर, प्रोपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन द वेरिएबल्स, एंड देन accommodate absolute zero. ओके. यस. नाउ क्लासिफिकेशन के नॉमिनल के अंदर हम क्या चीज फाइंड करते हैं, ग्राफिकल मेजर्स करें तो बार ग्राफ और पाई चार्ट. ठीक है. और नॉमिनल के अंदर हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मोड देखते हैं, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर बाइनोमियल और मल्टीनोमियल वेरिएंस फाइंड करते हैं. और ऑर्डिनल के अंदर क्या होता है, जिसको हम ऑर्डर में अरेंज करते हैं, दैट इज बार ग्राफ भी हो सकता है, हिस्टोग्राम भी हो सकता है. और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीडियन, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन में रेंज हम फाइंड करते हैं. ओके. और इंटरवल के अंदर हिस्टोग्राम एरियाज आर मेजर्ड, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम फाइंड करते हैं मीन, और डिस्पर्शन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन. और रेशो यानी कि रेशो अगर हम हिस्टोग्राम, एरिया आर द मेजरेबल्स. और रेशो के अंदर ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं. ठीक है. जब भी रेशियोज गिवन होती है ना, तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं. और जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ठीक है. ओके. आई होप you understand. If there is any doubt, then you can contact me. Okay. Thanks and have a nice day.